Today's topic is the infratemporal fossa. We have discussed, इसका आपका already demo हो चुका है, temporal and the infratemporal fossa. So first we will discuss the boundaries and the contents, and then in our topic today we will discuss the neural and the blood vessels, the contents. Later the muscles will be discussed in the next lecture. So first we'll discuss the temporal fossa. Temporal fossa, basically, as it has been given, the demo has been given, the temporal fossa, basically you can see in the diagram, the temporal fossa, the boundaries are anteriorly it is the zygomatic and the frontal bones, posteriorly the inferior temporal lines and the supramastoid crest, superiorly the superior temporal line, inferiorly the zygomatic arch, and floor is formed by the parts of frontal, parietal, temporal, greater wing of sphenoid, and the temporalis muscle is attached to the floor and the inferior temporal line. Now you can see the rounds, you can see the temporal bone, the demarcation of the temporal bone. Here you can see anteriorly what is the boundary of the temporal fossa, the frontal and the zygomatic bone. Superiorly you can see the superior temporal line, posteriorly the inferior temporal line and the supramastoid crest. Okay, so and the floor is formed by the four skull bones, parietal, frontal, temporal, here where the perineum lies. Okay, so this is your temporal fossa. The contents of temporal fossa are the temporalis muscle, middle temporal artery, zygomatico-temporal nerve and artery, deep temporal nerves which supplies the temporalis muscle, and the deep temporal artery which accompanies the deep temporal nerve. So ये तो आपका हुआ temporal fossa which you can see from the outside the skull, the in the norma literalis. उस एस्पेक्ट में आप टेम्पोरल फोसा को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं. नाउ कम्स द इंफ्राटेम्पोरल फोसा. टेम्पोरल फोसा इज क्लियर. नाउ कम्स द इंफ्राटेम्पोरल फोसा. सो व्हाट इज द इंफ्राटेम्पोरल फोसा? बेसिकली द इर्रेगुलर स्पेस, इट इज द इर्रेगुलर स्पेस बिलो द zygomatic arch. ठीक है, तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा बेसिकली आपका बेस ऑफ द स्कल के नीचे जो स्पेस है, in between the side of the pharynx wall, जो pharyngeal walls हैं उसके और ramus of mandible के बीच में जो space है, that is your infratemporal fossa. और वो directly connected है आपके temporal fossa से by deep zygomatic arch. In this diagram you can see the zygomatic arch is there. In between you can see the zygomatic arch. इस zygomatic arch के superior है temporal fossa एंड इंफीरियर जो आपको ramus ऑफ मैंडिबल दिख रहा है, ramus ऑफ मैंडिबल से इंटीरियर और zygomatic आर्च के इंफीरियर, देयर लाइज द इंफ्राटेम्पोरल फोसा. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द पैराफेरेंजियल स्पेस और द लेटरल फेरेंजियल स्पेस. क्यों? बिकॉज इट लाइज लेटरल टू द pharynx, साइड वॉल ऑफ द pharynx, and around the pharynx it is present, so it is called as the parapharyngeal space or the lateral pharyngeal space. So first we'll see the boundaries. See, first is the boundary. Boundaries में आपका जो पहला डायग्राम है that is आपको जो बेसिकली बोन सेल्स की बाउंड्री स्पेसिफाई की गई है. और सेकेंड डायग्राम इज द स्कीमेटिक डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस होल बोनी स्ट्रक्चर, उसका आपका स्कीमेटिक डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया गया. तो फर्स्ट आपका जो है, फर्स्ट कम्स द रूफ ऑफ द इंफ्राटेम्पोरल फोसा. अब डायग्राम में देखो, लेफ्ट वाले डायग्राम में आपको रूफ में क्या दिख रहा है? आपको बेस ऑफ द स्कल में बेसिकली यहाँ पे ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड दिख रहा है. उस रूफ में ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड का जो इंफ्राटेम्पोरल सरफेस है, उस सरफेस में यू कैन सी दी टू foramen spinosum and foramen ovale. So the infratemporal surface of greater wing of sphenoid,
which is pierced by foramen spinosum and the foramen ovale. This forms the roof of the infratemporal fossa. Now comes the anterior wall. Anterior wall, you can see the infratemporal surface of maxilla. Infratemporal surface of maxilla forms the anterior wall. ठीक है. Now the medial and the lateral wall. Medial wall, you can see the lateral surface of lateral pterygoid plate. डेमो में आपको बताया गया था बेस ऑफ द स्कल में वहाँ पे मीडियोलेटरल टेरेगोइड प्लेट्स थे. तो लेटरल टेरेगोइड प्लेट का लेटरल सरफेस इट फॉर्म्स द मीडियल वॉल ऑफ दिस इंफ्राटेम्पोरल सरफेस. एंड लेटरल वॉल कौन बनाएगा? लेटरल वॉल एज द एस्पेक्ट व्हाट यू आर सीइंग मतलब द ramus ऑफ द मैंडिबल. व्हाट वी वर सीइंग कि इंफ्राटेम्पोरल फोसा एक्चुअली है क्या? फेरिंग्स और ramus ऑफ मैंडिबल के बीच का जो स्पेस है, तो उसका लेटरल वॉल किसने बनाया? सिंपल, लेटरल वॉल उसका ramus ऑफ द मैंडिबल बनाया. ramus ऑफ द मैंडिबल को आप रिमूव कर रहे हैं तब आप बाकी सब देख पा रहे हैं. तो ramus ऑफ मैंडिबल आपका जो व्यूइंग एस्पेक्ट है, दैट इज योर ramus ऑफ मैंडिबल. तो दिस फॉर्म्स द लेटरल वॉल. नाउ रूफ हो गया एंटीरियर, मीडियल और लेटरल. ठीक है. पोस्टीरियर वॉल में आप देख सकते हो इट इज फॉर्म बाय द स्टालाइड प्रोसेस. स्टालाइड प्रोसेस आपका टेम्पोरल बोन का पार्ट है. स्टालाइड प्रोसेस, तो दैट फॉर्म्स द पोस्टीरियर वॉल. एंड द फ्लोर इज फॉर्म्ड डायरेक्टली, ये बेस ऑफ द मैंडिबल से एक्सटेंड करता है. यू कैन सी फ्लोर इज ओपन. इट विल डायरेक्टली कनेक्ट टू द स्पेसेस ऑफ द नेक. ramus ऑफ द मैंडिबल से नीचे वो बिल्कुल नीचे कनेक्ट करेगा और स्पेसेस से डायरेक्टली कनेक्ट होता है इंफ्राटेम्पोरल फोसा. अब इसको आप कंपेयर करो आपकी राइट साइड के डायग्राम से. फर्स्ट व्हाट वी सेड, रूफ इज फॉर्म बाय द इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड. वहाँ पे दो फोरामेन्स हैं, फोरामेन स्पाइनोजम, फोरामेन ओवेल. एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ मैक्सिला. अब यहाँ पे एक चीज़ देखो उस डायग्राम में कि इट इज़ अ सिंपल बॉक्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग इट एज अ बॉक्स. तो रूफ तो हमने बना दिया. जो इंटीरियर वॉल है आपका मैक्सिला का इंफ्राटेम्पोरल सरफेस, इट इज़ कनेक्टेड, इसका कनेक्शन जो है आपका इंटीरियर वॉल का, ठीक है, रूफ से कनेक्टेड है, एक्चुअली सेपरेटेड है. इट इज़ सेपरेटेड बाय द इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर. और मीडियल वॉल से सेपरेटेड है बाय टेरिगो मैक्सिलरी फिशर. यू कैन सी इन द डायग्राम. टेरिगो मैक्सिलरी फिशर आपकी बोनी उसमें डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर कांट बी रिप्रेजेंटेड. तो इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि कैसे एंटीरियर वॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम रूफ बाय द इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर एंड फ्रॉम द मीडियल वॉल बाय द टेरिगो मैक्सिलरी फिशर. रूफ हो गया, एंटीरियर वॉल हो गया. मीडियल वॉल किससे फॉर्म हुआ था आपका? लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल टेरेगोइड प्लेट. और जो लेटरल वॉल रिमूव किया है इन्होंने, दैट इज योर ramus ऑफ द मैंडिबल. पोस्टीरियर वॉल वाज बाय द स्टेलॉइड प्रोसेस. एंड फ्लोर डायरेक्टली कंटिन्यू होता है आपका बेस ऑफ द मैंडिबल से नीचे नेक ऑफ स्पेसेस ऑफ द नेक, उसमें डायरेक्टली कंटिन्यू होगा. तो ये जो एक बॉक्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, दैट स्पेस यू विल कीप ramus ऑफ द मैंडिबल और फेरिंग्स के बीच में. तो जो दैट स्पेस इज फॉर्म, दैट इज योर इंफ्राटेम्पोरल फोसा. ठीक है. चलो, नाउ द कम्युनिकेशंस. ये आपका कोरोनल सेक्शन, लेफ्ट साइड का डायग्राम जो है वो कोरोनल सेक्शन है. नाउ यू कैन सी कि आपका फर्स्ट है आपका स्कल, लेफ्ट साइड में स्कल है एंड राइट साइड यू कैन सी द ज़ाइगोमेटिक आर्च, नीचे ramus ऑफ द मैंडिबल. अब अपर पार्ट में आपका टेम्पोरल फोसा है और नीचे यू कैन नाउ इमेजिन कि लेटरल टेरेगोइड प्लेट और ramus ऑफ द मैंडिबल के बीच में इंफ्राटेम्पोरल फोसा है. एंड हाउ द टेम्पोरल एंड इंफ्राटेम्पोरल फोसा आर कनेक्टेड. ज़ाइगोमेटिक आर्च के मीडली जो गैप होता है, दैट गैप कनेक्ट्स द टेम्पोरल एंड द इंफ्राटेम्पोरल फोसा. ठीक है. सो ये इसका कम्युनिकेशन होता है. अब टेम्पोरल फोसा सिर्फ टेम्पोरल फोसा से कनेक्टेड नहीं होगा. हमने जैसे इस बाउंड्री में देखा, इस डायग्राम में देखा, तो इसके कई कनेक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना. तो ये बहुत सारे उससे इंटरकनेक्टेड होता है.
ओके, तो अब जैसे देखो इसकी कम्युनिकेशंस कैसे हो रही हैं इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। राइट साइड का डायग्राम देखो, फर्स्ट जाइगोमेटिक आर्च का जो गैप है, यू कैन सी जाइगोमेटिक आर्च के गैप से ये कनेक्टेड है आपका टेम्पोरल फोसा से, ठीक। अब उसके एंटीरियर वॉल में दो थे, एक इंफ्राऑर्बिटल फिशर था जिससे वो आपके रूफ से सेपरेट हुआ था, और टेरिगोमैक्सिलरी फिशर से वो आपके मीडियल वॉल से सेपरेट हो रहा था, ठीक है। तो टेरिगोमैक्सिलरी वॉल से वो जो सेपरेशन होता है वो उसका कनेक्ट, उस टेरिगोमैक्सिलरी फिशर से वो कनेक्ट करता है टेरिगोपैलेटाइन फोसा से, और इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर से वो कनेक्ट करेगा ऑर्बिट से। उसके नाम से यू कैन कोरिलेट कि टेरिगोमैक्सिलरी फिशर से किससे कनेक्ट कर रहा है, टेरिगोपैलेटाइन फोसा, और इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर से वो कनेक्ट कर रहा है ऑर्बिट से, ठीक है। अब वहाँ पे जो टेरिगोपैलेटाइन फोसा है वहाँ पे टेरिगोपैलेटाइन फोरामेन के थ्रू वहाँ से उस कनेक्शन से इट इज़ कनेक्टेड टू नेजल कैविटी ऑल्सो, ठीक है। और एक और चीज़ हमने देखी थी कि इसके रूफ में दो फोरामेन है, फोरामेन स्पाइनोजम एंड फोरामेन ओवेल। फोरामेन स्पाइनोजम और फोरामेन ओवेल से वो मिडिल क्रेनियल फोसा से भी कनेक्ट होगा, ठीक है। और हम फ्लोर से देखें तो फ्लोर से ये किससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली स्पेसेस ऑफ द नेक, लेटरल टू द फेरिंग्स है तो वो डायरेक्टली स्पेसेस ऑफ द नेक से कनेक्टेड है। तो इसकी कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स से है। जैसे रूफ में देखें तो फोरामेन स्पाइनोजम और ओवेल से डायरेक्टली मिडिल क्रेनियल फोसा से कनेक्टेड है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से ये आपका कनेक्टेड है ऑर्बिट से, टेरिगोमैक्सिलरी फिशर से कनेक्टेड है आपका टेरिगोपैलेटाइन फोसा, और वहाँ पे स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन से वो कनेक्टेड है नेजल कैविटी से, फ्लोर से वो कनेक्टेड है आपका स्पेसेस ऑफ द नेक। तो इस तरीके से यू कैन सी द कम्युनिकेशंस ऑफ द इंफ्राटेम्पोरल फोसा एंड हाउ इट इज कनेक्टेड टू द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ हेड एंड नेक रीजन। नाउ विल कम टू द contents of the infratemporal fossa. Simple, three contents: muscle, blood vessel and the neural structures of the nerves. First, muscles. Muscles में basically आपके आएंगे यहाँ पे content आपके muscles of mastication है। There are 4 muscles of mastication: lateral pterygoid, medial pterygoid, temporalis and masseter. In that masseter को छोड़ के आपके बाकी मसल्स के कंटेंट होते हैं लेटरल टेरेगॉइड, मीडियल टेरेगॉइड एंड टेम्पोरालिस मसल। 3 मसल्स इसके कंटेंट हैं इंफ्राटेम्पोरल फोसा के। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था, मैक्सिलरी आर्टरी मेन है यहाँ पे। आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 2 टर्मिनल ब्रांचेस थी, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी। तो जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच थी मैक्सिलरी, दैट इज द मेन कंटेंट ऑफ इंफ्राटेम्पोरल फोसा, और उस मैक्सिलरी आर्टरी को कौन अकम्पनी करेगा, मैक्सिलरी वेन एंड टेरेगॉइड प्लेक्सस। इफ यू आर रिमेम्बरिंग द फेस, तो उसमें यू आर नोइंग कि फेस में हमने देखा था कि डीप फेशियल वेन और उससे कनेक्टिविटी सब कैवर्नस साइनस से किसके थ्रू कनेक्ट हो रहे थे, टेरेगॉइड वीनस प्लेक्सस, ठीक है। तो दैट टेरेगॉइड वीनस प्लेक्सस, maxillary vein and the maxillary artery, they are the blood vessels which are present in this area. Third is the neural structure, basically most important, mandibular nerve, the largest and the third branch of the trigeminal nerve, mandibular nerve. Chorda tympani nerve, the long slender, short slender branch of facial nerve, the chorda tympani nerve, and the aortic ganglion. सो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स और न्यूरल स्ट्रक्चर्स को। नेक्स्ट लेक्चर में आपका पूरा मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन और उनके रिलेशंस डिस्कस होंगे, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी लास्ट क्लास में हमने देखा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 2 टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी विच इज़ द कंटिन्यूएशन, जो अपवर्ड कंटिन्यू करेगी ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और उसकी एक टर्मिनल ब्रांच होती है मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी इज द लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब ये ध्यान देना, जो मैक्सिलरी आर्टरी होती है बेसिकली इट अराइजेस बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल। यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, इस नेक ऑफ द मैंडिबल, ये आपका कंडाइल दिख रहा है, उसके नीचे ये नेक है, नेक के बिहाइंड राइज करती है आपकी मैक्सिलरी
आर्टरी। अब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान रख रहे हो तो आपको इसके ब्रांचेस, पार्ट्स, हर चीज़ याद रहेगा। एक डायग्राम से यू कैन राइट दी पूरा थ्योरी पार्ट फ्रॉम दिस डायग्राम। आप कोरिलेट करोगे, उसका कोर्स भी समझ में आएगा, उसके पार्ट्स भी और ब्रांचेस भी। अब स्टार्ट करो। देखो पहले एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आई, उसने एक पहले अपवर्ड जो ब्रांच दी, उसका टर्मिनल ब्रांच है सुपरफिशियल टेम्पोरल। उसने एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच दी नेक ऑफ द मैंडिबल के इंटीरियर, थोड़ा सा इंटीरियर में बिहाइंड में दिया है जो ये ब्रांच, दैट इज योर मैक्सिलरी आर्टरी। ये हॉरिजॉन्टली रन करती है और हॉरिजॉन्टली करके लोअर हेड ऑफ द लेटरल टेरेगॉइड, लोअर हेड ऑफ दी लेटरल टेरेगॉइड मसल के अलोंग ये मूव करती है अपवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। और वहाँ से जो एक्चुअली आपको ये मसल्स में ज़्यादा अच्छे से एक बार और रिलेशन डिस्कस होगा इसका। लेटरल टेरेगॉइड जो लेटरल टेरेगॉइड मसल है उसके 2 हेड होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिलरी आर्टरी उसके दोनों हेड, उसका जो अपर और लोअर हेड होता है, अपर और लोअर हेड के बीच से इमर्ज आउट होती है एंड इट एंटर्स दी टेरिगो पैलेटाइन फोसा बाय पासिंग थ्रू दी टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। हमने देखा था कि इंफ्राटेम्पोरल फोसा का एंटीरियर वॉल है, वहाँ पे टेरिगो मैक्सिलरी फिशर था जिससे वो टेरिगो पैलेटाइन फोसा से कनेक्टेड था। तो समझ में आया कि नेक ऑफ द मैंडिबल के बिहाइंड इट विल इमर्ज आउट, वहाँ से इमर्ज होगी लोअर हेड ऑफ दी टेरेगॉइड, लेटरल टेरेगॉइड मसल के ऊपर से जाएगी एंड इट विल इमर्ज बिटवीन द 2 हेड्स ऑफ द लेटरल टेरेगॉइड। फिर टेरिगो मैक्सिलरी फिशर से वो एंटर करेगी और किसमें, टेरिगो पैलेटाइन फोसा में, ठीक है। सो दिस इज योर मैक्सिलरी आर्टरी। चलो अब ये सप्लाई किसको करती है, ये पूरा एरिया यहाँ पे मेजर जो सप्लाई है अपर जॉ का और इस रिलेटेड यहाँ पे जो भी विसरल स्ट्रक्चर्स हैं उनको सबको मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करेगी। लाइक अपर एंड लोअर जॉ, मसल्स ऑफ टेम्पोरल एंड इंफ्राटेम्पोरल फोसा, नोज एंड द पैरानेजल साइनस, पैलेट, रूफ ऑफ फैरिंग्स, एक्सटर्नल एंड द मिडल ईयर, फेरिंगियोटिम्पैनिक ट्यूब एंड द ड्यूरा मैटर। अब इसके अकॉर्डिंग अब ये जो इसकी सप्लाई एरिया है, जब आपको ब्रांचेस याद होंगी, ब्रांचेस से रिलेटेड आप देखोगे कि किसको क्या क्या सप्लाई करें, तो देन यू कैन कोरिलेट द ब्रांचेस एंड द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि किसको किसको ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है। चलो नाउ पार्ट्स ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। फॉर प्रॉपर इसको अब कंसेप्चुअली इसको पढ़ने के लिए मैक्सिलरी आर्टरी को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय द लोअर हेड ऑफ द लेटरल टेरेगॉइड मसल। अब फर्स्ट ओरिजिन से लेके लोअर हेड ऑफ लेटरल टेरेगॉइड मसल तक, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट और द मैंडिबुलर पार्ट, जो बिहाइंड ऑफ द नेक ऑफ द मैंडिबल और बेसिकली स्पीनोमैंडिबुलर लिगामेंट और नेक ऑफ द मैंडिबल के बीच में जो लाई करेगी, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट, मैंडिबुलर पार्ट। सेकेंड पार्ट जो लोअर हेड ऑफ द टेरेगॉइड लेटरल टेरेगॉइड मसल के ऊपर लाई करेगा, उसके ऊपर जो पार्ट उसका लाई करेगा, दैट इज योर टेरेगॉइड पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट। थर्ड वो अपर बॉर्डर, ये जो लोअर हेड ऑफ द लेटरल टेरेगॉइड से टेरिगो पैलेटाइन फोसा में एंटर करने तक का that part is known as the टेरिगोपैलेटाइन पार्ट और the third part, ठीक है। सो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट कैसे, बस आपको जैसे बाकी आर्टरीज आपको डिवाइड, आपने जैसे पहले भी देखा है सारी आर्टरीज हाउ इट इज बाय बीइंग डिवाइडेड बाय द मसल इनटू वेरियस पार्ट्स, वैसे ही इसमें भी लोअर हेड ऑफ द लेटरल टेरेगॉइड डिवाइड्स द मैक्सिलरी आर्टरी इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट बिफोर इट, origin to the lower head of the lateral pterygoid muscle. Second part which lies over the lower head of lateral pterygoid muscle. Second part the pterygoid part. And third the pterygopalatine part from the upper border of the lower head of the lateral pterygoid to the pterygopalatine fossa. That part is known as your pterygopalatine part or the third part. ठीक, चलो अब these are your first, second and the third part. Now the branches, basically आपको याद रखना है 5, 4, 6, 5, 4, 6। फर्स्ट पार्ट से 5 ब्रांचेस हैं, सेकेंड पार्ट से
4 ब्रांचेस हैं और थर्ड पार्ट से 6 ब्रांचेस हैं। अब अगर आपको ये ब्रांचेस याद हो रही हैं, ब्रांचेस और उन ब्रांचेस से द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो नाउ यू कैन इजीली कोरिलेट कि व्हाट इज द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट से हमने क्या बोला 5, 4, 6। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट होंगी 5 इसकी ब्रांचेस। फर्स्ट ब्रांच आप देखो नेक ऑफ द मैंडिबल के जस्ट वहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, छोटी छोटी 2 ब्रांचेस। डायरेक्टली आपको कनेक्ट करना है ईयर से। एक है आपकी डीप ऑरिकुलर आर्टरी और सेकेंड है आपकी एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी। जो डीप ऑरिकुलर आर्टरी है बेसिकली ये आपके एक्सटर्नल स्किन ऑफ एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस, ऑब्वियसली ऑरिकल लिखा है तो इट विल सप्लाई दी स्किन ऑफ एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस एंड दी आउटर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस को डीप ऑरिकुलर आर्टरी। और जो सेकेंड आपकी एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी है, जो पार्ट आपका दिख रहा है एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, दिस एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी जो है that artery it supplies the inner surface of tympanic membrane। ठीक है, 5 में से 2 ब्रांचेस समझ में आई, 2 हमको ईयर में सप्लाई करनी है, डीप ऑरिकुलर आर्टरी एंड द एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी। थर्ड आर्टरी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी, द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। अब नेक ऑफ द मैंडिबल के बाद देखो 2 आर्टरीज बिल्कुल पैरेलल जा रही है। फर्स्ट इज योर मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, सेकेंड इज योर एक्सेसरी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। तो आपकी जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है दिस इज द लार्जेस्ट मेनिंजियल ब्रांच और किसको सप्लाई करेगी, मेनिंजिस को। ठीक है, तो ये दिस इज द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। नाउ यू कैन सी जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है फर्स्ट पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है और ये बेसिकली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जब हम नेक्स्ट में इसका न्यूरल जब पार्ट मैंडिबुलर नर्व डिस्कस करेंगे तब याद रखना इसका जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे इट इज एनसर्कल्ड बाय द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व यहाँ पे एनसर्कल होती है, मैं वहाँ पे डायग्राम वाइज आपको फिर से बताऊंगी। यहाँ पे बस ध्यान रखो, यहाँ पे जस्ट ओरिजिन पे वहाँ पे इट इज एनसर्कल्ड बाय द 2 रूट्स ऑफ ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। उसके बाद इट इज एंटरिंग द क्रेनियल कैविटी थ्रू फोरामेन स्पाइनोसम। ठीक है, यहाँ पे एक और है कि इस आर्टरी के साथ यहाँ पे नर्वस स्पाइनोसस भी एंटर करती है। अगेन रिमेंबर मैंडिबुलर नर्व का एक मेनिंजियल ब्रांच जाता है, मैंडिबुलर नर्व में फिर बताया जाएगा। फिर आप यू कैन कोरिलेट, यहाँ पे 2 नर्व्स का रिलेशन हमने देखा मिडिल मेनिंजियल आर्टरी से ओरिजिन हो रही है, वहाँ पे एनसर्कल हो रहा है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व और एंटर ये फोरामेन स्पाइनोसम से जा रही है, तो वहाँ पे उसकी एक नर्व एंटर कर रही है नर्वस स्पाइनोसिस। ठीक है, अब आफ्टर एंटरिंग द क्रेनियल कैविटी यहाँ पे ये एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस देती है एंड इट विल सप्लाई द ड्यूरा मैटर एंड द इनर सरफेस ऑफ द स्कल। ठीक है, इसके साथ इसकी वेन्स भी प्रॉपर, इसकी जो वो रहती है वेन्स भी इसको अकम्पनी करेंगी। सेकेंड है आपकी एक्सेसरी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। नाउ यू कैन सी इट इज रनिंग पैरेलली टू द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एंड इट इज एंटरिंग थ्रू द डिफरेंट फोरामेन। कौन सी फोरामेन है वो, फोरामेन ओवेल। इफ यू रिमेंबर फोरामेन ओवेल मेल MALE, तो उसमें ए क्या था, एक्सेसरी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, इट ऑल्सो सप्लाइज द मेनिंजिस एंड द इंफ्राटेम्पोरल स्ट्रक्चर्स इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। ठीक, अब देखो मिडिल मेनिंजियल और एक्सेसरी मिडिल मेनिंजियल के जस्ट अपोजिट डाउनवर्ड्स वहाँ से एक आर्टरी जा रही है, दिस इज योर इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। ये लोअर जॉ को, इंफीरियर एल्वियोलर लोअर जॉ को सप्लाई कर रही है, तो वह है इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। ठीक है, अब जो इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी है आप यू कैन सी डाउनवर्ड्स वो रन करेगी। ठीक है, और इट इज एंटरिंग अ फोरामेन हियर इन द मैंडिबल, दैट फोरामेन इज द मैंडिबुलर फोरामेन। मैंडिबुलर फोरामेन में एंटर करते ही वो मोलर, यहाँ के जो भी टूथ हैं रिलेटेड टूथ होंगे, मोलर, प्रीमोलर टीथ और एडजॉइनिंग गम्स को सप्लाई करती है। फिर आगे जाके यू कैन सी इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेंटल आर्टरी एंड द इंसिसिव ब्रांचेस। ठीक है,
जो ये इंसिसिव ब्रांचेज हैं, इंसाइसिव जो ब्रांचेज हैं वो डायरेक्टली इंसाइजेस और केनाइन को सप्लाई करेगी, और जो मेंटल आर्टरी है वो आपकी चिन की स्किन को, यू कैन सी मैंडिबुलर फोरामेन में एंटर की, ठीक है। उसके बाद वो आगे जाके दो में डिवाइड हुई है, इंसिसिव ब्रांचेस उसने दी है और एक उसने दी है आपको आपकी मेंटल ब्रांच। मेंटल ब्रांच स्किन ऑफ द चिन को सप्लाई कर रही है और इंसिसिव ब्रांचेस आपके कैनाइन और इंसाइजेस को। वन थिंग टू रिमेंबर, जैसे ही वो एंटर मैंडिबुलर फोरामेन में कर रही है उससे जस्ट पहले वो एक ब्रांच दी है, दैट इज योर माइलोहाइड आर्टरी, ठीक है। माइलोहाइड आर्टरी आपके माइलोहाइड मसल को सप्लाई करेगा, ठीक। तो हमने देखी फर्स्ट 5 ब्रांचेस, बिल्कुल ये डायग्राम याद रखो। लेटरल टेरेगॉइड से पहले, ओरिजिन और लेटरल टेरेगॉइड के बीच में जो पहला मैंडिबुलर पार्ट है, 5 4 6 5 ब्रांचेस, 2 ब्रांच ईयर को, 2 ब्रांच मिडिल क्रेनियल फोसा और एक लोअर जॉ को, ठीक है। 2 ईयर के लिए डीप ऑरिकुलर आर्टरी एंड द एंटीरियर टिम्बो, मिडिल क्रेनियल फोसा के लिए मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एंड द एक्सेसरी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, एक लोअर जॉ के लिए इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। तो 5 ब्रांचेस आपकी फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बेसिकली आपके मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करेगी। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन कौन से हैं? लेटरल और मीडियल टेरेगॉइड, मेसेटर एंड द टेम्पोरालिस, ठीक है। तो अब देख सकते हो सेकेंड पार्ट विच इज लाइंग अलोंग अपॉन दिस मसल, तो ये सेकेंड पार्ट में इसकी कौन कौन सी जा रही, इसके अलावा मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन के अलावा एक बक्सिनेटर को भी सप्लाई करती है ये, ठीक। तो सिर्फ मस्कुलर ब्रांचेस देनी है हमने, तो हमने क्या क्या दिया? सबसे पहली ब्रांच है मेसेटर, मेसेट्रिक आर्टरी, किसको सप्लाई करेगी? मेसेट्रिक नर्व को, ठीक है। सेकेंड है डीप टेम्पोरल आर्टरीज, 2 पेयर्स होती हैं ये डीप टेम्पोरल आर्टरीज, किसको सप्लाई करेगी? टेम्पोरलिस मसल को। नेक्स्ट है आपकी टेरेगॉइड ब्रांचेस, टेरेगॉइड ब्रांचेस किसको सप्लाई करेगी? आपकी बेसिकली ये आपकी लेटरल और मीडियल टेरेगॉइड मसल। और एक हमने क्या बोला? बक्सिनेटर को भी देना है, तो ये उसकी बकल आर्टरी, ठीक है, जो बक्सिनेटर मसल को सप्लाई करी। तो सेकेंड में 4 ब्रांचेस टू द मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन एंड बक्सिनेटर, ठीक है। फर्स्ट मेसेट्रिक, डीप टेम्पोरल, बकल एंड द टेरेगॉइड ब्रांचेस, ठीक है। तो 5 and 4 फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट क्लियर। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में जिसमें 6 ब्रांचेस हैं। 6 ब्रांचेस हमने क्या बोला? थर्ड पार्ट एक्चुअली में कौन सा एरिया है? फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर हेड ऑफ द लेटरल टेरेगॉइड, लेटरल टेरेगॉइड मसल का जो लोअर हेड है वहाँ से स्टार्ट करेंगे टू द टेरिगोपेलेटाइन फोसा। अब टेरिगोपेलेटाइन फोसा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे विसरल स्ट्रक्चर्स हैं, तो उधर सबको सप्लाई करती है वो, ठीक करके याद करना है। सबसे पहला हमारे मैक्सिलरी, ये मैक्सिला से रिलेटेड जो होगा, फर्स्ट इज योर पीएसए पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी, ठीक है। अगर इसके उसको लोकेशन को अगर पढ़ के, इसके नाम को अगर आप पढ़ के कोरिलेट कर सकते हो तो ईजिली समझ जाओगे। पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी बेसिकली मैक्सिलरी आर्टरी से जो राइज होके, इसमें आप डायग्राम से भी यू कैन सी ये डायरेक्टली टेरिगो मैक्सिलरी फिशर से एंटर करके वो डिवाइड करती है और पूरे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, ध्यान दो, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द मैक्सिला, उसमें एंटर करके पूरे वहाँ पे मोलर प्रीमोलर टिथ को और म्यूकस मेम्ब्रेन को सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी फर्स्ट। सेकेंड है आपकी इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी। इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी याद आया? इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन था, वहाँ पे आपके नर्व थे, वहीं पे है आपकी इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी। वहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी इसने ब्रांच दी, ठीक है, टेरिगोपेलेटाइन फोसा में उसने ब्रांच दी, तो इंफ्राऑर्बिटल फिशर से, इंफ्राऑर्बिटल ग्रूव से होते हुए वहाँ पे वो अपीयर होगी। और वो ब्रांचेस किसको देगी? एज इट नेम सजेस्ट, सबसे पहला ब्रांच वो अपने ऑर्बिटल कंटेंट्स को देगी। इसके अलावा 2 ब्रांच ये देती है जो मेजर ब्रांच है, एक देती है मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी एंड एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। मतलब मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी आपके प्रीमोलर टूथ को सप्लाई करेगा और एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी आपकी बेसिकली इंसाइजर और कैनाइन को।
अब देख सकते हो इसमें मैक्सिलरी आर्टरी आपकी पहले पोस्टीरियर टूथ को भी सप्लाई की है, पोस्टीरियर मोलर्स को, फिर उसने प्रीमोलर्स को भी सप्लाई किया और एंटीरियर में इंसाइजेस और कैनाइन को। कि कैसे इसकी थर्ड पार्ट की जो ब्रांचेस हैं इसने मैक्सिला के जॉ में सारे टूथ को सप्लाई किया, अलग अलग आर्टरीज। जैसे मोलर्स के लिए है आपका PSA, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी, आपके कैनाइन्स के लिए है आपका मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी जो ब्रांच है इंफ्राऑर्बिटल की, और एक एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी वो आपके कैनाइन्स और इंसाइजेस को। ठीक है, इसके अलावा इसकी ब्रांचेस जो रहती हैं वो बिल्कुल ये लैक्राइमल सैक, मीडियल एंगल ऑफ द आई, साइड ऑफ द नोज और अपर लिप को भी ये सेंसरी सप्लाई देती है, सॉरी यहाँ पे भी ये सप्लाई करती है। ठीक है, तो 6 ब्रांचेस में से 2 हमने मैक्सिला कंप्लीट कर लिया, एक पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी से और दूसरा इंफ्राऑर्बिटल से। ठीक है, अब जॉ तो कंप्लीट हुआ, बट मैक्सिला से और रिलेटेड यहाँ पे बोन कौन सी है, पैलेटाइन बोन है। तो पैलेट उसको सप्लाई करने के लिए एक ब्रांच देती है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। देखो पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी से थोड़ा सा नीचे बिहाइंड वहाँ पे इंफीरियरली एक ब्रांच गई है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। ठीक है, ये आर्टरी डायरेक्टली एंटर करती है ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल में। आपके हार्ट पैलेट वहाँ पे एक फोरामेन होता है ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, वहाँ से ये एंटर करती है और बेसिकली ये पूरा रूफ ऑफ द माउथ, आपके पैलेटाइन रीजन को, जो पैलेटल रीजन है, रूफ ऑफ द माउथ और एडजॉइनिंग गम्स को, पैलेटल साइड को, वो उसको पूरा सप्लाई करेगी। और उसकी कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जिसको हम लेसर पैलेटाइन आर्टरीज बोलते हैं। ठीक, तो 3 ब्रांचेस हो गई। यहाँ पे हमने देखा कि 6 जो थर्ड पार्ट है उसमें से उसने सबसे पहले 2 ब्रांचेस से मैक्सिला के जॉज को, टूथ को, सारे टीथ को सप्लाई कर दिया। किसको, मोलर्स को और इसको। हाँ, बकल आर्टरी विल सप्लाई दी बक्सिनेटर। इसी कारण मैंने बोला कि सेकेंड पार्ट जो है उसने मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन और बक्सिनेटर को सप्लाई किया है। ठीक, बकल आर्टरी विल सप्लाई दी बक्सिनेटर। चलो पहले थर्ड पार्ट में हमने देखा कि थर्ड पार्ट में सबसे पहले मैक्सिला को सप्लाई हुआ। मैक्सिला के लिए 2 आर्टरीज उसने दे दी कि पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर दे दी और एक इंफ्राऑर्बिटल की भी 2 ब्रांचेस जिसने प्रीमोलर्स और कैनाइन्स को दिया। थर्ड उसने ब्रांच दिया पैलेट के लिए, द ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। अब वहाँ पे और एक कौन सा विसरल स्ट्रक्चर है आपका है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के लिए उसने एक आर्टरी दी, फेरिंजियल आर्टरी। ठीक है, ऊपर देख सकते हो जस्ट अपोजिट टू इंफ्राऑर्बिटल वहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, फेरिंजियल आर्टरी और आर्टरी ऑफ टेरेगॉइड कैनाल। तो फेरिंजियल आर्टरी विल सप्लाई द नेजोफेरिंक्स, ऑडिटरी ट्यूब एंड द स्फिनोइडल एयर साइनस। तो वहाँ पे वो पैलेटोवेजाइनल कैनाल से होके ये पूरा नेजोफेरिंक्स वाले एरिया को सप्लाई करेगा। और जो एक छोटा सा ब्रांच है आर्टरी ऑफ टेरेगॉइड कैनाल, तो ये सप्लाई करेगा वही बेसिकली आपके फेरिंग्स, ऑडिटरी ट्यूब और टिम्पैनिक कैविटी को, जो कि टेरेगॉइड कैनाल से पास करेगा। ठीक, तो 2 आर्टरी बिल्कुल छोटी छोटी फेरिंग्स को जो जाएंगी, फेरिंजियल आर्टरी एंड आर्टरी ऑफ टेरेगॉइड कैनाल। अब लास्ट जो आर्टरी, जो मेजर आर्टरी जो दिया है यहाँ पे, जो एक्चुअली में मैक्सिलरी आर्टरी की एक कंटिन्यूएशन होती है, दैट इज योर स्पीनो पैलेटाइन आर्टरी। हम इसकी क्लिनिकल में भी देखेंगे कि स्पीनो पैलेटाइन आर्टरी का कैसा उसका कनेक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है जो डायरेक्टली नेजल कैविटी में एंटर करेगी। ठीक है, वहाँ पे वो सेप्टल और नेट्रल नेजल ब्रांचेस देके पूरी नेजल जो कैविटी है उसको सप्लाई करती है। ठीक, तो ये याद रखना है स्पीनो पैलेटाइन आर्टरी, हम इसके उसमें भी डिस्कस करेंगे क्लिनिकल कोरिलेशन में। तो अब देखो इस डायग्राम से हमको क्या क्या देखना है। सबसे पहला मैक्सिलरी आर्टरी, टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई लोअर हेड ऑफ लेटरल टेरेगॉइड से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो फर्स्ट पार्ट है उससे 5 ब्रांच, 5, 4, 6 याद रखना है, 5, 4, 6। तो 5 ब्रांचेस आपके फर्स्ट पार्ट से, 2 ईयर को 2 मिडिल क्रेनियल फोसा को 2 और एक हो जाएगा डीप ऑरिकुलर और एंटीरियर टिम्पैनिक, 2 मिडिल क्रेनियल फोसा को जाएगा मिडिल मेनिंजियल और एक्सेसरी मिडिल मेनिंजियल, और एक लोअर जॉ को जाएगा इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। 5, 4 सेकेंड पार्ट से 4 ब्रांचेस, हमने क्या बोला, जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन और बक्सिनेटर को सप्लाई करेगी। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन ये आपकी टेरेगॉइड ब्रांचेस, डीप टेम्पोरल आर्टरी और मेसेट्रिक आर्टरी और एक बकल आर्टरी। बकल आर्टरी आपके बक्सिनेटर को सप्लाई करेगी।
ठीक। उसके बाद थर्ड पार्ट से 6 ब्रांचेस। 6 ब्रांचेस में मेरे को 2 देनी है मैक्सिला को। मैंने दे दिया पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी जो कि मोलर्स को सप्लाई की। फिर मैंने दिया इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी, इंफ्राऑर्बिटल की 2 ब्रांचेस। एक है मिडिल सुपीरियर जो उसने सप्लाई किया किसको, प्रीमोलस को, और एक एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी जो इंसाइजेस और कैनाइंस को, तो 2 को। एक हमने दिया पैलेट को, दी ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। और वहाँ पे कौन सा विसरल स्ट्रक्चर है, फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स को दिया फेरिंजियल आर्टरी और एक आर्टरी ऑफ टेरेगॉइड कैनाल। और जो मैक्सिलरी आर्टरी की कंटिन्यूएशन है दैट इज योर स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी जो आपको किसको सप्लाई करेगी, आपके नेजल कैविटी में। ठीक, डन। सो सिंपल याद रखो मैक्सिलरी आर्टरी, तो यू शुड रिमेंबर 5 4 6, 3 पार्ट्स 5 4 6। ठीक, और इसके अब अगर आप सारे आपको ब्रांचेस याद है तो ब्रांचेस से यू कैन ईजिली टेल मी कि सारे कौन कौन से एरियाज को वो सप्लाई कर दिए, इट सप्लाईज इसके एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डन, चलो दिस इज योर ब्रांचेस। नाउ यू कैन सी एवरी ब्रांच, और ये इस टेबल में यू कैन सी इसका कोरिलेशन की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, किस फोरामेन से ट्रांसमिट हो रही है और कहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है, ये आपके बीडीसी में दिया हुआ है तो यू कैन कोरिलेट। अब आपको याद आ जाएगा कि 3 पार्ट्स हैं। 5 देखो फर्स्ट जैसे कॉलम में आप देख सकते हो 5 4 6, 5 फर्स्ट पार्ट 2 ईयर को गई, 2 मिडिल क्रेनियल फोसा और एक लोअर जॉ, उसके अकॉर्डिंग जो भी फोरामेन डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड पार्ट में मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन एंड बक्सिनेटर। थर्ड पार्ट में आप 2 पहले दे दो मैक्सिला को, एक पैलेट को दे दो, 2 फेरिंग्स को दे दो और एक लास्ट नेजल वाला जो जाएगा दैट इज स्फीनोपैलेटाइन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ मैक्सिलरी वेन। मैक्सिलरी वेन जो बेसिकली मैक्सिलरी आर्टरी को अकम्पनी करेगी दैट इज योर मैक्सिलरी वेन। वो किससे फॉर्म हो रही है, जहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी आपकी डिवाइड हुई है वहीं पे मैक्सिलरी वेन फॉर्म होती है बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेन्स फ्रॉम द टेरेगॉइड वीनस प्लेक्सस। और टेरेगॉइड वीनस प्लेक्सस से वहीं पे जस्ट पास होके पैरोटिड ग्लैंड में, इफ यू रिमेंबर द पैरोटिड ग्लैंड, तो विद इन द पैरोटिड ग्लैंड वहाँ पे इट यूनाइट्स विद द सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन टू फॉर्म द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। तो दिस वाज योर मैक्सिलरी वेन। ठीक, नेक्स्ट इज योर टेरेगॉइड वीनस प्लेक्सस। अब टेरेगॉइड वीनस प्लेक्सस इफ यू रिमेंबर आपके शुरू से फेस से हमने स्टार्ट किया और हर जगह आपको बताया कि टेरेगॉइड वीनस प्लेक्सस एक प्लेक्सस प्रेजेंट है आपके मैक्सिलरी रीजन में, दैट इज योर टेरेगॉइड वीनस प्लेक्सस। तो ये नेटवर्क है ऑफ स्मॉल वेन्स, प्लेक्सस फॉर्म हुआ है अराउंड दी लेटरल टेरेगॉइड मसल। अब इसका कम्युनिकेशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप कैवर्नस साइनस में भी इसके कम्युनिकेशंस देखे हैं, फेस में भी इसके कम्युनिकेशंस देखे हैं। कैसे कि इंफ्राऑर्बिटल फिशर के थ्रू ये कनेक्ट किया है इंफीरियर ऑप्थैल्मिक वेन से, कैवर्नस साइनस से वो कनेक्ट किया है बाय एमिजरी वेन, और फेशियल वेन, डीप फेशियल वेन से वो कनेक्ट करता है फेशियल वेन। तो अगर आप एक बार कैवर्नस साइनस रिवाइज करोगे, फेस रिवाइज करोगे, तो यू कैन कोरिलेट कि वो कैसे इसके 3 कम्युनिकेशंस हैं। ठीक, चलो फिर लास्टली टेरेगॉइड वीनस प्लेक्सस किस में ड्रेन करेगा, मैक्सिलरी वेन में। मैक्सिलरी वेन सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन के साथ ड्रेन करके रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनाएगा। ठीक, तो वीनस पार्ट क्लियर हुआ इसका। चलो अब आ जाओ द इम्पॉर्टेंट द न्यूरल स्ट्रक्चर, दी मैंडिबुलर नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नर्व्स में एक बार और डिस्कशन होगा बट यहाँ इसका प्रॉपर इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको इस पार्ट में मिलेगा। द मैंडिबुलर नर्व बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 डिविजन्स ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व। ट्राइजेमाइनल नर्व के 3 जो ब्रांचेस हैं उसमें से 3rd ब्रांच है आपकी मैंडिबुलर नर्व विच इज़ द लार्जेस्ट। द मैंडिबुलर नर्व इज बोथ सेंसरी एंड, अब इसको देखते जाओ। अब इस अगर देखो वही चीज़ आपकी थ्योरी यू कैन कोरिलेट विद द डायग्राम, दैट्स वाई। अब इस डायग्राम से आप पूरा मैंडिबुलर नर्व का अपना आप आंसर यू कैन राइट। अब इस डायग्राम में क्लिक करना जहाँ स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक। सबसे पहले यू कैन सी ये मिक्स्ड नर्व है, क्यों, एंड जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है यू कैन सी एक सेंसरी रूट है जो बड़ा वाला और एक छोटा सा है दैट इज योर मोटर रूट। तो इट इज़ अ मिक्स्ड नर्व कंटेन्स बोथ सेंसरी एंड द मोटर फाइबर्स। मैंडिबुलर नर्व अगर आपको एम्ब्रोलॉजी याद है तो दैट इज द नर्व ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च।
तो वो पूरे फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की जो मसल्स होंगी, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, वो सबको सप्लाई करेगी। साथ में टेंसर टिम्पैनी, टेंसर पैलेटाई, सब मसल्स को सप्लाई करेगी। ठीक है, चलो अब बेसिक याद रखो। हम स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम में। अब स्टार्टिंग पॉइंट देखो जहाँ पे सेंसरी और मोटर रूट लिखा है। तो जो सेंसरी रूट है दैट इज योर लार्जर पार्ट। ये जो लार्जर पार्ट है वो ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन से इमर्ज आउट होता है और निकलते ही वो फोरामेन ओवेल से, सेंसरी रूट जो है वो फोरामेन ओवेल से एंटर करके इंफ्राटेम्पोरल फोसा में एंटर कर जाता है निकल कर। जो एक मोटर रूट है, बिल्कुल छोटा सा एक देखो सेंसरी रूट के साथ है, ये एक्चुअली में अराइज होता है पॉन्स से और ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से डीप ये नीचे पास आउट होके सेंसरी रूट के साथ निकल के जस्ट आफ्टर इमर्जिंग आउट फ्रॉम द फोरामेन ओवेल, दैट सर्कल फोरामेन ओवेल है वो, वहाँ से इमर्ज आउट होके ये बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन उसके बाद ज्वाइन कर लेता है आपके मोटर रूट को। ठीक है, फिर ये जो मैंडिबुलर नर्व का मोटर रूट है, ये दोनों मिलके मेन ट्रंक फॉर्म करते हैं। दैट ट्रंक थोड़ी सी दूर, ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं होता, आफ्टर अ शॉर्ट कोर्स इट डिवाइड्स इनटू एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, तो फोरामेन ओवेल से निकल के जैसे ही दोनों रूट्स मिली और जहाँ पे वो डिवीजन हुआ तो ये इसका ट्रंक है। ठीक है, ट्रंक बिल्कुल छोटा सा है जहाँ पे दोनों मिलके मेन ट्रंक बनाएंगे और ट्रंक आके चल के बस शॉर्ट ड्यूरेशन में ही वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, स्मॉल एंटीरियर और लार्जर पोस्टीरियर। ठीक, तो ये जो आपका ट्रंक है, ट्रंक से आपकी दो ब्रांचेस जाती हैं। ठीक, ट्रंक से दो ब्रांचेस जाएंगी। अब देखो ट्रंक फोरामेन ओवेल से जस्ट नीचे एक लेफ्ट और साइड राइट में दोनों में दो ब्रांचेस गई। लेफ्ट साइड में देखो एक छोटी सी नर्वस स्पाइनोसिस लिखा है। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था मिडिल मेनिंजियल आर्टरी फोरामेन स्पाइनोसम से एंटर करती है मिडिल क्रेनियल फोसा में और उसके साथ एक छोटी सी नर्व भी एंटर करती है, नर्वस स्पाइनोसिस। तो मैंडिबुलर नर्व के मेन ट्रंक से दो नर्व्स निकली, एक हुआ नर्वस स्पाइनोसिस, ये मेनिंजियल ब्रांच होती है, ये रिट्रोग्रेड अपना रिकरेंट कोर्स फॉलो करती है और डायरेक्टली क्रेनियल कैविटी में मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के साथ वो फोरामेन स्पाइनोसम में एंटर कर जाती है और किसको सप्लाई करेगी? ऑब्वियसली मेनिंजियल ब्रांच है तो ड्यूरामेटर, मिडिल क्रेनियल फोसा के ड्यूरामेटर को सप्लाई करती है। ठीक, अब राइट साइड देखो एक और ब्रांच निकली है, नर्व टू मीडियल टेरेगॉइड। अब नर्व टू मीडियल टेरेगॉइड है तो किसको सप्लाई करेगी? मीडियल टेरेगॉइड मसल को। ठीक है, तो ये जो नर्व टू मीडियल टेरेगॉइड है ये क्या करती है? ऑटिक गैंग्लियन से पास होके, ये देखो ये ध्यान रखना एक ऑटिक गैंग्लियन है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ऑटिक गैंग्लियन से जस्ट वो पास होती है और पास होके ये तीन मसल्स को सप्लाई करती है। नाम के अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, नर्व टू मीडियल टेरेगॉइड। फिर दो ब्रांचेस और देती है ये, एक टेंसर टिम्पैनी को और एक टेंसर पैलेटाई मसल को, जो पैलेट की मसल है और एक ईयर की, तो टेंसर टिम्पैनी मसल एंड टेंसर पैलेटाई मसल। ठीक है, तो दो ब्रांचेस इसने ट्रंक से दे दी, ये क्लियर हो गया। एक डे चला गया मिडिल क्रेनियल फोसा और एक इसने मीडियल टेरेगॉइड को दे दी, साथ में दो मसल्स और हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ऑटिक गैंग्लियन से ट्रांसवर्स हुई है, पास हुई है ये नर्व, उस पर कोई कनेक्शन नहीं दिया है बट उससे पास हुई है। ठीक है, तो दो ब्रांचेस। अब आ जाओ, जैसे ही मेन ट्रंक अपने शॉर्ट ड्यूरेशन अपनी ब्रांचेस देख के ये आगे चल के दो डिविजन्स में डिवाइड होता है। छोटा वाला जो है दैट इज योर एंटीरियर डिवीजन और जो लार्जर है वो है आपका पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन जो बेसिकली होता है वो मोटर होता है, मसल्स को सप्लाई करेगा, मोटर होगा। सारे मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन एक्सेप्ट मीडियल टेरेगॉइड। क्यों? क्योंकि मीडियल टेरेगॉइड को ऑलरेडी ट्रंक ने दे दी है ब्रांच, तो बाकी जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन उसको ये सप्लाई करेगा, साथ में बक्सिनेटर को भी। ठीक है, अब देखो एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन में हमने बोला किसको सप्लाई कर रहा है? मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। तो कौन कौन सी है? मेसेटर मसल को सप्लाई करेगा, मेसेट्रिक नर्व। फर्स्ट देखो जो कर्व्ड एक नर्व दिख रही है दैट इज योर मेसेट्रिक नर्व। मेसेट्रिक नर्व किसको सप्लाई किया? मेसेटर को, याद रखना। साथ में मेसेट्रिक आर्टरी होगी।
लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मेसेंट्रिक नर्व सिर्फ उस मसल को नहीं सप्लाई करेगा, उसके साथ वो TMJ आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को भी सप्लाई करेगा, मेसेंट्रिक नर्व। ठीक, फिर जैसे डीप टेम्पोरल आर्टरी थी वैसे यहाँ पे डीप टेम्पोरल नर्व्स हैं, वो आपके सप्लाई करेंगे टेम्पोरलिस मसल को। नर्व टू लेटरल टेरेगॉइड सप्लाई करेगा टेरेगॉइड मसल को, लेटरल टेरेगॉइड मसल को, और बकल नर्व सप्लाई करेगा आपका बक्सिनेटर को। अब ध्यान रखो, मैंने पहले बोला था एंटीरियर डिवीजन के जो मसल्स होते हैं वो बेसिकली मोटर होते हैं, एक्सेप्ट द बकल नर्व। क्यों? क्योंकि बकल नर्व बक्सिनेटर मसल को पियर्स करके पूरी लोअर जॉ और ये इधर की गम्स को, पूरे चिक्स को, जिंजाइवा को, सबको सप्लाई करता है, सेंसरी सप्लाई करता है। ठीक, तो ये मेजर तो आपका मोटर है, साथ में एक छोटा इसका सेंसरी पार्ट भी है जो आपका बकल नर्व है, आपके चिक्स को ये सप्लाई कर रहा है बकल नर्व। ठीक, तो एंटीरियर डिवीजन की 4 ब्रांचेस, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन याद रखना, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करेगा एक्सेप्ट मीडियल टेरेगॉइड, क्योंकि मीडियल टेरेगॉइड को ऑलरेडी ट्रंक ने दे दी है एक ब्रांच। ठीक, अब आपका आ जाएगा पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन में याद रखना है इसकी 3 मेजर ब्रांचेस, अली, ALI, अली, ठीक है, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, आपका L से है लिंगुअल नर्व, और थर्ड है आपका I से इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। ठीक है, तो अली से याद रखना, ही शुड से यस अभी। ठीक, चलो एटलीस्ट तुमको अपने बैचमेट के नाम से याद रहेगा। पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व, फर्स्ट है आपका ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, अब आप याद रखो मैंने क्या बोला था, मिडिल मेनिंजिल की ओरिजिन के पास हमने बोला था यहाँ पे एक उसकी ब्रांच थी, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व उसको एनसर्कल करता है। तो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इट अराइजेस बाय टू रूट्स, और ये दोनों रूट निकल के पहले मिडिल मेनिंजिल आर्टरी को एनसर्कल करते हैं, फिर यूनाइट करके सिंगल ट्रंक में अपसाइड वो मूव करते हैं। ठीक है, अब ये अपसाइड जाके इसके नाम के अकॉर्डिंग, इसका नाम क्या है, ऑरिकुलोटेम्पोरल, मतलब ऑरिकल रीजन और टेम्पोरल रीजन दोनों में सप्लाई करेगा। तो किसको किसको देगा, सबसे पहले तो ऑरिकल रीजन, पूरे स्किन ऑफ ट्रैगस, अपर पार्ट ऑफ पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑरिकुलर ब्रांच उसको देगा। एक आर्टिकुलर इसके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को भी जाता है इसका एक ब्रांच। फिर टेम्पोरल है, तो टेम्पोरल सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांचेस स्किन ऑफ ये टेम्पोरल रीजन को भी सप्लाई करेगा, टेम्पल को। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपको याद है पैरोटिड ग्लैंड, तो पैरोटिड ग्लैंड में ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व का सिक्रीटोमोटर फाइबर था, पाथवे याद है? क्यों? क्योंकि उसमें फ्रेज सिंड्रोम हमने एक बार पढ़ा था पैरोटिड ग्लैंड में, तो एक उसका सिक्रीटोमोटर फाइबर भी जाता है पैरोटिड ग्लैंड को। ठीक, तो फर्स्ट इज योर ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, सेकेंड इज योर लिंगुअल नर्व। सामने देखो जो आपका एंटीरियर डिवीजन के जस्ट नीचे एक लिंगुअल नर्व निकल रही है। ठीक है, लिंगुअल नर्व स्मॉल टर्मिनल ब्रांच होती है मैंडिबुलर नर्व को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज सेंसरी टू द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। देखो वहाँ पे 2/3 ऑफ द टंग की सेंसरी सप्लाई है लिंगुअल नर्व। ठीक, अब इसके कोर्स रिलेशन को थोड़ा सा देखना। जैसे ही वो इमर्ज आउट होती है, तो जैसे ही इमर्ज आउट होने के 2 सेंटीमीटर के बाद उसको एक नर्व विच इज जॉइनिंग द लिंगुअल नर्व, दैट इज योर कॉर्डा टिम्पैनी नर्व। ठीक है, कॉर्डा टिम्पैनी नर्व जॉइंस द लिंगुअल नर्व। उसके बाद इट विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे जब वो मूव करते हैं तो एक ग्रूव होता है माइलोहाइड मसल के पास, वहाँ पे एक ग्रूव होता है, उससे वो पास होके इट विल लाई ऑन दी जीनियोग्लॉसिस, जो मेन बल्क आपका टंग जिसको फॉर्म कर रहा है मसल, जीनियोग्लॉसिस मसल, उस पे लाई करती है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जब वो जीनियोग्लॉसिस मसल से लाई करके आगे जाती है, वहाँ पे सब मैंडिबुलर डक्ट इसको वाइंड अप करता है। ये मैं इस कारण बता रही हूँ, इसके क्लिनिकल कोरिलेशन में हम देखेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरीज यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ता है कि ड्यूरिंग सर्जरीज आपकी अगर लिंगुअल नर्व है तो यू हैव टू स्पेयर इट, और यहाँ पे सब मैंडिबुलर डक्ट अगर ग्लैंड को आप रिमूव कर रहे हो तो ध्यान रखना कि सब मैंडिबुलर डक्ट जो थी वो किसको वाइंड अप की थी, आपके लिंगुअल नर्व को। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब
मोस्ट इंपॉर्टेंट, सप्लाई किसको किया, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, उसकी है आपकी सप्लाई, सेंसरी सप्लाई, फ्लोर ऑफ द माउथ, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। साथ में अगर आपको ध्यान हो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन से रिलेटेड है तो सिक्रीटो मोटर पाथवे टू दी सब मैंडिबुलर एंड दी सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक, ये हुआ आपका लिंगुअल नर्व। लिंगुअल नर्व के बाद देखो इन दोनों के ऑरिकुलोटेम्पोरल और लिंगुअल के बीच में जो एक मेजर नर्व निकल रही है दैट इज योर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, लार्जर टर्मिनल ब्रांच है पोस्टीरियर डिवीजन की। ठीक, फिर यहाँ से जो इमर्ज आउट होगी, अब देखो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व बेसिकली आपका वही रैमस ऑफ द मैंडिबल, जहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी थी, रैमस ऑफ द मैंडिबल और स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट के बीच से ये इमर्ज आउट होगी और आगे चल के वो मैंडिबुलर फोरामेन में एंटर करेगी। सेम वे जैसे इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी थी, मैंडिबुलर फोरामेन में एंटर करने से पहले वो एक ब्रांच देगी माइलोहाइड नर्व की, नर्व टू माइलोहाइड, जो आगे जाके माइलोहाइड मसल को और एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को सप्लाई करेगा। ठीक है, डायग्राम अगर आपको याद, आप देख सकते हो डायग्राम से यू कैन टोटली कोरिलेट दी थ्योरी पार्ट। ठीक, तो इंफीरियर एल्वियोलर मैंडिबुलर फोरामेन में एंटर करने से पहले उसने एक ब्रांच दे दी माइलोहाइड नर्व, नर्व टू माइलोहाइड, जिसने दो मसल्स को सप्लाई की, नर्व टू माइलोहाइड मसल, मसल को तो सप्लाई किया माइलोहाइड मसल को, साथ में एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को भी सप्लाई किया। ठीक है, अब आपकी जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व थी वो मैंडिबुलर फोरामेन से आगे जाके उसमें इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी के साथ अकम्पनी करेगी और आगे जाके वो दो ब्रांचेस देगी, एक इंसिसिव ब्रांच और एक मेंटल ब्रांच। जो इंसिसिव ब्रांच है वो इंसाइजर्स और कैनाइन को सप्लाई करेगी। कुछ इसकी डेंटल, देखो छोटे छोटे ऐसे ब्रांचेस जा रहे हैं बिल्कुल बारीक से हेयर लाइक, तो वो उसके डेंटल ब्रांचेस जो मोलर और प्रीमोलर टूथ को सप्लाई किया। और लास्ट में जो मेंटल ब्रांच इमर्ज आउट हो रही है मेंटल फोरामेन से, वो आपके स्किन ऑफ चिन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लोअर लिप को सप्लाई करेगी। ठीक है, सो दिस इज योर मैंडिबुलर नर्व। आपको बिल्कुल याद रखना है, फर्स्ट सेंसरी और मोटर रूट दोनों निकलेंगे, मेन ट्रंक फॉर्म करेंगे, ट्रंक से दो इसकी ब्रांचेस जाएंगी, एक जाएगी मिडिल क्रेनियल फोसा नर्वस स्पाइनोसस मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के साथ, दूसरी नर्व टू मीडियल टेरेगॉइड, नर्व टू मीडियल टेरेगॉइड दो मसल को और सप्लाई करेगा, टेंसर टेम्पनाई और टेंसर पैलेटाई। फर्स्ट फेरेंजियल आर्ट जिस मसल को सप्लाई कर रहा है याद रखना। ठीक है, उसी की नर्व है ना मैंडिबुलर नर्व, तो उसको जिसने मसल्स को जिस मसल्स को सप्लाई किया। नेक्स्ट उसका एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, साथ में बक्सीनेटर को क्रॉस करके वो सेंसरी बकल नर्व भी देगी, मेसेट्रिक नर्व, डीप टेम्पोरल नर्व, नर्व टू लेटरल टेरेगॉइड एंड दी बकल नर्व। पोस्टीरियर डिवीजन अली से तुमको याद रखना पड़ेगा, अली को सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके पोस्टीरियर डिवीजन की तीन ब्रांचेस, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। ठीक है, सो दिस इज योर मैंडिबुलर नर्व। जो मैंने बताया यही वो इसका थ्योरी पार्ट है। इसकी ब्रांचेस यू कैन सी फ्रॉम द मेन ट्रंक दो है, एंटीरियर डिवीजन से 4 है और पीछे से पोस्टीरियर डिवीजन से 3। देन समझ आ गया आपको मैंडिबुलर नर्व। चलो अब आ जाओ कॉर्डा टिम्पनाई, ये सब आगे रिवाइज होगा। कॉर्डा टिम्पनाई बिल्कुल एक स्लेंडर ब्रांच होती है फेशियल नर्व की। ठीक है, फेशियल नर्व की यू कैन सी फेशियल नर्व से एक छोटी सी ब्रांच निकली है। ठीक है, जो अकम्पनी कर रही है किसको, लिंगुअल नर्व को। ठीक है, सो दिस इज योर कॉर्डा टिम्पनाई नर्व। अब ये नर्व बेसिकली किसको किसको सप्लाई करती है, अब देख सकते हो इसका सब मैंडिबुलर गैंग्लियन से रिलेशन है, तो सिक्रीटोमोटर पाथवे किसको दे रहा है, सबलिंगुअल ग्लैंड को और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को, और ये किसको सप्लाई कर रहा है, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, टेस्ट सेंसेशन ऑफ द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। इसमें जो इसके कंपोनेंट्स हैं, जब क्रेनियल हम नर्व्स पढ़ाएंगे उसमें आपके कंपोनेंट्स पढ़ाए जाएंगे, तो उसमें आपको फिर अलग से इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इसको आपको देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये निकल के एक्चुअली पूरा इसको फेशियल नर्व से अलग से निकल के ये मिडिल क्रेनियल मीडियल आपका जो ईयर है उस कैविटी को ट्रांसवर्स करके
वो लिंगुअल नर्व को इस तरीके से पास करती है। ये इसका कोर्स है, दैट इज़ नॉट दैट वे इम्पॉर्टेंट फॉर यू। चलो अब लास्ट में आ जाएगा ऑप्टिक गैंग्लियन। बिल्कुल सिंपल सा एक ये फिर से डिस्कस होगा आपका ऑप्टिक गैंग्लियन पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन के साथ। एक स्मॉल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है विच इज कनेक्टेड टू द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व which supplies the secretomotor fibers to the parotid gland. Topographically it is related to the mandibular nerve. Topographically मतलब इसके लोकेशन से, लास्ट टाइम याद है हमने डिस्कस किया था, इसकी अकॉर्डिंग टू लोकेशन तो वो मैंडिबुलर नर्व से रिलेटेड है, बट ये फंक्शनली किससे रिलेटेड है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से। बिल्कुल पिन हेड साइज का होता है, इंफ्राटेम्पोरल फोसा में जस्ट फोरामेन ओवेल से नीचे, बिलो द फोरामेन ओवेल, बिल्कुल फोरामेन ओवेल से जस्ट नीचे ये प्रेजेंट, फोरामेन ओवेल है उसके जस्ट नीचे देखो ऑप्टिक गैंग्लियन प्रेजेंट है। ठीक, अब इसके रिलेशंस में अगर मैं इंफ्राटेम्पोरल फोसा में बोल रही हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल वैसी रिलेशन होता है। लेटरली प्रेजेंट होती है मैंडिबुलर नर्व, मिडली टेंसर पैलेटाई मसल प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियरली मिडिल मेनिंजियल आर्टरी और एंटीरियरली मिडिल टेरिगॉइड मसल। इसके आपके पूरे आगे डिस्कस होंगे कि इसके पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, सेंसरी और सोमैटोमोटर क्या क्या इसके रूट्स और कनेक्शन है। अभी आपको एटलीस्ट इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये सप्लाई करता है किसको? पैरोटिड ग्लैंड को थ्रू दी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। पैरोटिड ग्लैंड का ये सिक्रोटोमोटर इसका पूरा पाथवे होता है। ठीक है, तो दिस इज योर ऑप्टिक गैंग्लियन। अब आ जाओ क्लिनिकल कोरिलेशन में। ठीक, क्लिनिकल कोरिलेशन अब जल्दी जल्दी हमने देखा सिर्फ आर्टरी और नर्व्स को देखा है। तो सबसे पहले नर्व्स में कौन कौन से हमने नर्व्स देखे। तो एक इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक। अब ये आपके डेंटल प्रोसीजर्स में इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है मैंडिबुलर टूथ अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं किस नर्व को एनेस्थेटाइज करूंगी? इंफीरियर एल्वियोलर नर्व को। तो इस नर्व को जब एनेस्थेटाइज करते हैं तो दैट इज योर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक। ठीक, अब ये नर्व ब्लॉक मैंडिबुलर टूथ को रिमूव करने के लिए किया जाता है। डायरेक्टली जहाँ पे ये मैंडिबुलर फोरामेन में एंटर करता है आपका इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, उससे जस्ट सुपीरियरली आप उसको इंजेक्ट करते हो, आपके एलए को, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को वहाँ पे वो करते हो, तो आपके डायरेक्टली मेन रूट ही एनेस्थेटाइज हो जाती है। तो आगे पूरा ये जो जिस एरिया को सप्लाई करेगा, जिस स्ट्रक्चर्स को, वो सभी एनेस्थेटाइज होंगे। ठीक है, दूसरा वन इज़ योर लिंगुअल नर्व। लिंगुअल नर्व अब हमने जब देखा तो लिंगुअल नर्व का जो रिलेशन था, क्या होता है कि लिंगुअल नर्व एग्जैक्टली हमारे थर्ड मोलर टूथ से बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होता है। तो जब हम इम्पैक्टेड थर्ड मोलर टूथ जब हम रिमूव करते हैं तो उस केस में बहुत चांसेस होते हैं आपके लिंगुअल नर्व की इंजरी के। ठीक है, अगर लिंगुअल नर्व इंजर हुआ तो आपका एंटीरियर 2/3 का टेस्ट सेंसेशन चला जाएगा। ठीक है, तो वाइल रिमूविंग दी विजडम टूथ, जो थर्ड मोलर टूथ है, उसको रिमूव करने के टाइम में आपको बहुत प्रिसाइसली करना पड़ता है कि आप लिंगुअल नर्व को इंजर ना करें। नेक्स्ट इज योर रिफर्ड पेन। रिफर्ड पेन क्या होता है? बेसिकली पेन आपकी एक ब्रांच से दूसरी उसी नर्व की ब्रांच को अगर रिफर हो रहा है तो दैट इज योर रिफर्ड पेन। जैसे कि मैंडिबुलर नर्व में होता है कि अगर पेशेंट टंग कैंसर से सफ़र कर रहा है तो उसके टंग कैंसर के जो को सफ़र कर रहा है तो उसका पेन रेडिएट आपके ईयर में और टेम्पोरल रीजन में जाएगा थ्रू दी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। ठीक है, तो ये आपका होता है रिफर्ड पेन। इस केस में यूजुअली क्या किया जाता है कि लिंगुअल नर्व को सेपरेट किया जाता है लास्ट मोलर टूथ से, तो इससे क्या रिलीव होता है, एक्चुअली उसके फाइबर्स उसको आप सेपरेट कर देते हो तो पेन आगे ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज योर रिफर्ड पेन। अब आ जाओ, हमने इसमें देखा था आपकी आर्टरियल जो ब्लड सप्लाई थी, तो उसमें मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, इफ़ यू नो कि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी ईजिली इंजर होता है, मैंने इसका डेमो दिया था आपको स्कल में। तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी ईजिली टीरियन रीजन में रोड एक्सीडेंट्स में या किसी ऐसी इंजरी से ईजिली रप्चर हो सकता है जिससे एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमोरेज हो सकता है।
ठीक है। एंड एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमोरेज हैज इट्स फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस और क्लॉट फॉर्म हो सकता है एंड इट कैन कंप्रेस द मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन। ठीक, अब वन यू शुड रिमेंबर कि लोअर टिच से अगर आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो या कोई भी इंजरी हो रही है तो लोअर टिच में सप्लाई कौन करता है, इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी, और अपर टूथ में सप्लाई करता है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर और इंफ्राऑर्बिटल आर्टरीज। तो ये आर्टरीज आपकी अकॉर्डिंगली अपर और लोअर टूथ को सप्लाई करती है। तो इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी फर्स्ट पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है और पोस्टीरियर सुपीरियर इंफ्राऑर्बिटल थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है आपकी। जो आपकी लास्ट ब्रांच थी, कंटिन्यूएशन था आपका मैक्सिलरी आर्टरी का, द स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी, थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी का जो टर्मिनल ब्रांच था, ये बेसिकली आपका स्पिनोपैलेटाइन जो आप वहाँ से कंटिन्यू करके नेजल सेप्टम में जाता है और वहाँ पे बहुत एक लार्ज कैपिलरी प्लेक्सिस फॉर्म करता है। ठीक है, जब आपका नोज और पैरानेजल साइनस आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको फिर बताया जाएगा स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी। तो वहाँ पे जो ये प्लेक्सिस फॉर्म होता है दैट इज़ नोन एज किज़लबैक्स प्लेक्सिस, और इसी एरिया से एक्चुअली इस एरिया से ही आपका एपिस्टेक्सिस होता है, मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम दी नोज। अभी देखा है कुछ लोगों की गर्मियों में यूजुअली नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो ये वो प्लेक्सिस है जिसका रप्चर होता है तो ब्लीडिंग होती है नोज से। ठीक है, और दैट एरिया जहाँ पे प्लेक्सिस फॉर्म होता है दैट इज नोन एज योर लिटिल्स एरिया एंड दिस आर्टरी इज नोन एज द आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस। ठीक, ठीक है, चलो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहला देखा, रिवाइज करें। यस, यहाँ पे रिवीजन में आप लोग और बीइंग मिस। चलो, सबसे पहला टेम्पोरल फोसा, वी नो, आप ज़ाइगोमेटिक आर्च के जस्ट ऊपर जाओ तो दैट पार्ट इज योर टेम्पोरल फोसा। एंटीरियरली फ्रंटल ज़ाइगोमेटिक बोन है, ऊपर से सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, पोस्टीरियरली आपका इंफीरियर टेम्पोरल लाइन, सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट। ठीक है, तो दिस एरिया इज योर टेम्पोरल फोसा। फिर इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को फर्स्ट इज योर रूफ बाय द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड, एंटीरियर वॉल बाय द मैक्सिला, मीडियल वॉल बाय द लेटरल टेरेगोइड प्लेट। जो आपका सीइंग आप जो विजिबिलिटी अभी जो एस्पेक्ट जिस एस्पेक्ट से आप देख रहे हो, रैमस ऑफ द मैंडिबल लेटरल वॉल है, पोस्टीरियरली स्टाइलॉइड प्रोसेस, और ये फ्लोर से कनेक्टेड है नीचे फैरेंजियल स्पेसेस ऑफ द नेक। दिस यू कैन सी बाय दिस डायग्राम कि कैसे रूफ, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल वॉल कैसे कनेक्टेड है और इसका कनेक्शन क्या क्या है। ठीक है, सो दिस इज योर इंफ्राटेम्पोरल फोसा। इसके कंटेंट्स मसल, ब्लड वेसल्स और न्यूरल स्ट्रक्चर्स। मसल्स डिस्कस होगा नेक्स्ट में, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन में, ब्लड वेसल्स और न्यूरल स्ट्रक्चर। ब्लड वेसल में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिलरी आर्टरी की 3 पार्ट्स बाय द लोअर हेड ऑफ द लेगॉइड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5, 4, 6। फर्स्ट पार्ट से आपको देने हैं 5 ब्रांचेस, 2 ईयर, 2 ईयर को 2 मीडियल क्रेनियल फोसा, 1 लोअर जॉ को, 2 अपने दी ईयर को डीप ऑरिकुलर एंटीरियर टिम्पैनिक, 2 मिडिल क्रेनियल फोसा, मिडिल एंड मेनिंजियल आर्टरी एंड द एक्सेसरी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, 1 लोअर जॉ को, इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। 4 ब्रांचेस सेकेंड पार्ट की जो आपकी जाएंगी मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन एंड बक्सिनेटर। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन लेटरल टेरेगॉइड, मेसेट्रिक, डीप टेम्पोरल एंड टेरेगॉइड ब्रांचेस एंड दी बकल आर्टरी। 6 ब्रांचेस आपकी थर्ड पार्ट से, 2 दे दो आप मैक्सिला को, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी एंड इंफ्राऑर्बिटल की 2, मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी एंड एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। 1 दोगे आप पैलेट को, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, 2 दोगे आप फैरिंग साइड को, फैरिंजियल आर्टरी एंड द आर्टरी ऑफ टेरेगॉइड कैनाल, और 1 आप दोगे नोज को, नेजल एरिया को, नेजल कैविटी को, स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी। सो 3 पार्ट्स, 5, 4, 6 ब्रांचेस, और ये जिस एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इसका सप्लाई होगा मैक्सिलरी आर्टरी का। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैक्सिलरी वेन, टेरेगॉइड प्लेक्सस, मैक्सिलरी वेन, पहले टेरेगॉइड प्लेक्सस जो फॉर्म हो रहा है लेटरल टेरेगॉइड, उसके साथ इसके कनेक्शंस, ये फाइनली ड्रेन करेगा मैक्सिलरी वेन में। मैक्सिलरी वेन सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन के साथ मिलकर रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनाएगा।
फेस आप एक बार रिवाइज करना, फेशियल वेन्स को, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंडिबुलर नर्व, दो रूट, सेंसरी एंड दी मोटर। सेंसरी मोटर दोनों मिलके फोरामेन ओवल से निकलेंगे, मर्ज होके बनाएंगे मेन ट्रंक। मेन ट्रंक की दो ब्रांचेस, नर्वस स्पाइनोसस मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के साथ फोरामेन स्पाइनोसम में। फिर आएगा नर्व टू मीडियल टेरेगॉइड, ओटिक गैंग्लियन से क्रॉस होके ये मीडियल टेरेगॉइड को सप्लाई करेगा, साथ में दो मसल्स, टेंसर टिम्पानी और टेंसर पैलेटाई मसल। फिर ये आगे चल के डिवाइड होगा दो में, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन बेसिकली मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, मेसेट्रिक नर्व, डीप टेम्पोरल नर्व, बकल नर्व और नर्व टू लेटरल टेरेगॉइड। इसमें जो बकल नर्व है दैट इज योर सेंसरी नर्व, ठीक है, आपकी चिक्स की स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को सप्लाई किया है। पोस्टीरियर डिवीजन, अली, ALI, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व एंड दी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व की दो रूट्स, दोनों रूट मिडिल मेनिंजियल को एनसर्कल होके ऊपर जाएगी, सप्लाई करेगी ऑरिकल रीजन को, आर्टिकुलर एक टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को, टेम्पोरल रीजन को, और पैरोटिड की सीक्रेटोमोटर फाइबर्स देगी। लिंगुअल नर्व एंटीरियर 2/3 ऑफ दी उसको सप्लाई करेगी, कॉर्डा टिम्पनाई उसको ज्वाइन करेगा और सबमैंडिबुलर ग्लैंड से रिलेटेड होगा। ये बेसिकली एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग का सेंसरी सप्लाई है, साथ में सिक्रीटोमोटर फाइबर्स टू दी सबमैंडिबुलर एंड दी सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच है। मैंडिबुलर फोरामेन में एंटर होने से पहले नर्व टू माइलोहाइड, फिर एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को भी वहाँ पे सप्लाई करी है। ये सारी मसल्स आपको याद हो अगर अब फर्स्ट फेरेंजियल आर्च मैंडिबुलर नर्व्स की नर्व होती है और कौन कौन सी मसल्स वहाँ पे इंक्लूड होती है, इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये एंटर करेगी मैंडिबुलर फोरामेन, मैंडिबुलर फोरामेन से डेंटल ब्रांचेस दी, इंसिसिव ब्रांच और एक मेंटल ब्रांच। मेंटल ब्रांच जो है वो आपकी सेंसरी सप्लाई होगी, ठीक है। सो दिस इज योर मैंडिबुलर नर्व। देन ऑल क्लियर, किसी को कोई डाउट? कॉर्डा टिम्पनाई और ऑर्टिक आगे और डिस्कस होना है। फेशियल नर्व में कॉर्डा टिम्पनाई डिस्कस होगा, विच इज बेसिकली आपकी सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड के सिक्रीटोमोटर पाथवे फॉर्म करेगा, और ऑर्टिक गैंग्लियन आपके पैरोटिड ग्लैंड का फॉर्म करेगा, ठीक। किसी को कोई डाउट? चलो फिर अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लेना। मैंडिबुलर नर्व इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक।